There's some big breaking news coming in 70 hours after the attack. आरोपी का फिलहाल तस्वीरें जो देख रहे हैं भाभा हॉस्पिटल से मुंबई पुलिस की टीम लेकर जा रही है कोर्ट, और जहां पर आरोपी का रिमांड मांगेगी। Those were the exclusive visuals of the accused and the attacker of Saif Ali Khan being taken from Bhabha Hospital to the court. Right now, he will be produced before the holiday court. But before that, a medical checkup was carried out as per procedure of the attacker at the KB Bhabha Hospital. Now, the police have taken the accused to the court. They will be seeking custody of this particular man who was arrested from a construction site in Thane, because the police want to get more details as to who is he, where is he from, what was the motive of the attack, and who helped him secure fake identity cards to stay in India, and especially in Mumbai, because he was residing in Mumbai for the last 5 to 6 months. These are the visuals of the accused being taken from Bhabha Hospital to the holiday court, where he will be produced before the judge, and the police are seeking custody of this particular man. He has been identified as Mohammad Shariful Islam Shehzad, and according to the Mumbai police, the accused had been changing his चेकअप करके लेके मुंबई पुलिस जा रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम लेके जा रही है, और मेडिकल चेकअप हो चुका है। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम यहां से भाभा हॉस्पिटल ले जा रही है, और यहां से सीधे कोर्ट लेके जा रही है। सजाद देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम यहां से मेडिकल चेकअप करा के यहां से लेके जा रही है। कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस और रिमांड मांगेगी कि आरोपी का। फिलहाल तस्वीरें जो देख रहे हैं भाभा हॉस्पिटल से मुंबई पुलिस की टीम लेकर जा रही है कोर्ट, और जहां पर आरोपी का रिमांड मांगेगी। Well, that was Satya Prakash detailing what was happening right before him. That was the police van that is seen on your screens taking the accused to the holiday court after a medical checkup at the Bhabha Hospital, which is in Mumbai. As per protocols, first the accused will be taken to the medical examination, and that's done right now at the Bhabha Hospital. And after the medical examination, he will be produced before the court. The police are seeking his custody, and they will interrogate him on various angles as to how he got into the borders, who helped him, who facilitated him, who are the agents who are involved in providing him fake identity cards, who helped him secure a job in Mumbai, how did he get an accommodation on fake documents in Mumbai, and what was he doing for 5 to 6 months in the maximum city, and as a housekeeping staff, how did he... In fact, these are the live visuals from the Bandra Holiday Court, where the accused will be brought in to be produced before the judge. These are the visuals. The security has been heightened. There you can see that's the entrance. That's the police van which has the accused, and they have brought him to the court. They will be produced. They will produce the accused before the court right now and seek custody. And this is the latest pictures coming in from Mumbai. Visited a labor camp at a construction site in Thane, and they were specifically looking for one man with credentials that, traced back to Bangladesh. They were looking for a Bengali laborer. That's exactly what the laborers told Republic TV when they were questioned. These are the visuals on your screens of the police van that has brought the accused from Bhabha Hospital to the Bandra court. Satya Prakash is joining us live on this broadcast. Satya Prakash, the accused has been brought to the court. How many days custody has the police sought so far?
देखिए दीपक, यहाँ से भाभा को हॉस्पिटल से यहाँ से आरोपी को लेकर जा चुकी है मुंबई पुलिस की टीम और यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में रिमांड मांगा जाएगा आरोपी का, क्योंकि जिस तरह से कई ऐसे राज है जिसका अभी खुलना बाकी है। मुंबई पुलिस अभी शुरुआती जांच किया है, आरोपी से पूछताछ किया है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आना बाकी है। लगातार मुंबई पुलिस की टीम ये कोशिश कर रही है कि जो आरोपी है उससे जो राज है जो अभी पता नहीं रहा है उसको उससे निकलवाया जाए। तो कहीं न कहीं आज जो जज के सामने, कोर्ट के सामने कहीं न कहीं मुंबई पुलिस से रिमांड की मांग करेगी और रिमांड में मांग करेगी कि इसको कम से कम 10 दिन या 1 हफ्ते का रिमांड दिया जाए, क्योंकि आरोपी जो जिस तरह से ये घटना का अंजाम दिया, जिस तरह से वारदात किया, जिस तरह से सैफ अली खान के घर के अंदर गया, ये पूरी वारदात कैसी रची और पूरी तरह से किस तरह से, क्या पहले रेकी किया था या कोई मदद किया है, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस टीम मुंबई पुलिस कोर्ट में बताएगी और रिमांड मांग करेगी। साथ ही ये भी पता करेगी कि जो 3 दिन लगभग लग गया कि उसको पकड़ने में मुंबई पुलिस की 35 टीमें थी, लगातार ढूंढ रही थी और जिस तरह से थाने से उसको गिरफ्तार किया गया है, तो आखिर इसको बचाने में कोई मदद तो नहीं किया है। इन सारी चीजों को लेकर आज अभी थोड़ी देर में बांद्रा कोर्ट के अंदर लेके जाएगी और जहां पर कोर्ट के अंदर रिमांड मांगेगी। जी Satyaprakash ji, also several questions will also be asked, and the police are making a very, very strong case to seek the remand of this accused because he is an infiltrator. How did he get into Mumbai and how did he get in from Bangladesh? Who helped him get and cross the borders? Who helped him secure those fake documents? And what was he doing for the last 5 to 6 months? Whether he has been sent by someone, whether there are hidden hands behind this particular incident, who was handling him, who are the handlers who helped him with these documentation and also securing a job and also accommodation in Mumbai. So all of this will be extracted from this accused after they seek a remand from the court, and the court is likely to provide the required number of days that the police will ask, because this is something that everybody wants to know as to how an infiltrator, a Bangladeshi national, how did he secure a job, that too in the housekeeping department, and that too in one of India's most famous actors' residence. He was a housekeeping staff as per the police. And what was the motive behind the attack? Why did he stab Saif Ali Khan? Whether there was only a theft angle or whether this goes beyond the theft angle, that is something that the police will have to uncover. But prima facie, the police have said that he had fake documents. He had been using several aliases just to, mislead the police, mislead the investigation, and also to conceal his identity. But upon visiting that particular labor site late last night, the police managed to arrest him from there as he was hiding in the bushes, where we showed you the entire location of that particular construction site. We got you an exclusive testimony of the laborers as well, who claimed that the police came in specifically looking for a Bengali laborer because they had analyzed the dump data from his phone, and there was a January 9th footage as well that helped them zero in on this particular accused. We have Satyaprakash back with us. Satyaprakash, the police are making a very, very strong case for themselves to secure a remand. Tell us about what's happening in the court, if you have any details about the proceedings right now. देखिए दीपक, किसी भी समय बांद्रा कोर्ट के अंदर आरोपी को लेकर पहुंचने वाली है मुंबई पुलिस टीम, और मुंबई पुलिस का कहना है कि इसको हम रिमांड मांगेंगे और लंबा रिमांड मांगेंगे, क्योंकि ये जो आरोपी है ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश आया हुआ है, और बांग्लादेश से कैसे आया और कौन कौन मदद किया, इन सारी चीज़ों को जानकारी निकालेगी मुंबई पुलिस टीम। और लगातार अगर रिमांड मिलता है, लंबा रिमांड मिलता है, तो कहीं न कहीं जो कई राज है उसको सामने आएगा। मुंबई पुलिस टीम यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से आरोपी ने मुंबई में इतना दिन रहा, साथ ही उसकी कौन कौन मदद किया है, किसके साथ रहा और कैसे उसको लोकेशन मिला और कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस टीम लगातार उनसे जो आरोपी है उसे पूछताछ किया है, लेकिन अभी तक कई ऐसे राज है जो कि सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश से आने के बाद मुंबई में उसका कौन मदद किया, कौन से कहाँ पे रहा, सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस की टीम जानकारी निकालेगी। जी Satyaprakash, if you could tell us how the police managed to arrest him and what have they seized so far, because the police claim that according to the seizures that they have made from the accused, it is now clear, very, very clear that he is not a local, he is a Bangladeshi resident. Tell us about what are the seizures as far as the documents are concerned and what they have found with the accused upon arrest.
Well, Satya Prakash is tracking all the latest updates from what's happening inside the court. We'll get him back online with us. But the police viewers in the press conference, they said that according to the seizures that were made from the accused, it is very clear that the accused is not a local. He was using several aliases just to secure a job and also to get an accommodation here. He was working in the housekeeping agency and he secured a job there. He was living in Mumbai for the last 5 to 6 months. And after that, he was also in a few towns surrounding Mumbai. And when they arrested him, several documents were seized. He didn't have a valid document to support his claim that he is not an infiltrator. In fact, the police also claimed that he didn't have a valid Aadhaar card with him. And that's when they got to know that he is not a local individual. He is from Bangladesh. He was a Bangladeshi illegal immigrant, and that's what the police have uncovered. Now, furthermore, they will be questioning him about several aspects. The motive of the attack, the reason for him to cross borders and stay in Mumbai for the last 5 to 6 months, who helped him secure those documents, what was the reason for him to relocate from Bangladesh to Mumbai. And we also have Shivangi joining us live from the newsroom. Shivangi, there are several questions. Although the attacker has been arrested, there are several unanswered questions that continue to linger in the minds of the people as to how this particular man secured fake documents, who helped him. Is there a broader angle to this? Is there a larger nexus behind helping such individuals secure jobs and accommodations in Mumbai? Right. And, Deepak, you were just describing who this person is from all what the investigation agencies are saying, what the police is saying. Now, speaking on what you have said, remember that there has been a countrywide drive to identify and remove illegal immigrants from Bangladesh. We have been seeing that happen for quite a while in different parts of India. We've seen how some of them have been deported. But speaking about the main suspect, like we were telling our viewers, that this suspect has not been able to produce valid documents which show that he is a resident of India. So that's one of the top updates we had got for our viewers. Remember when our colleague Meenakshi was at the construction site, where he was hiding, the construction site near Mumbai, where he was hiding. Shivangi, hold your thoughts. I have Pragati also joining me from outside the court. Pragati, if you could tell us what's happening in the court and what the Mumbai police have, submitted before the court, because they are seeking custody of this particular attacker. If you could give us more details. बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो आरोपी को, अक्यूज को खार पुलिस स्टेशन से मेडिकल के लिए लेकर गई बाबा हॉस्पिटल, जहाँ पर मेडिकल हुआ। और तुरंत उसके बाद मेडिकल के बाद आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी है बांद्रा कोर्ट के बाहर, जहाँ पर कोर्ट के अंदर पुलिस की टीम लेकर पहुंची है। और सबसे बड़ा यहाँ पर मोटिव पुलिस की तरफ से रहेगा कि वो कस्टडी ले सके अक्यूज की, आरोपी की, जिससे कि उसकी रिमांड मिल पाए और आगे जो सवाल जवाब करने हैं वो हो पाए। क्योंकि अभी ऐसे कई सवाल हैं जिनके आंसर्स नहीं मिले हैं बहुत, क्योंकि पिक्चर अभी क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर से पर्दा नहीं उठा है, क्योंकि सैफ अली खान पर अटैक होता है, लेकिन ये आरोपी वहां पर कैसे पहुंचा, तो फिर इतनी इजीली बाहर कैसे आया। फिलहाल अंदर कोर्ट में पुलिस की टीम मौजूद है। मैं आपको वाहन भी दिखा देती हूँ। ये वही वाहन है जिसमें आरोपी को लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। उसको काली शॉल उड़ाई गई थी और उसको पहनाकर सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस की टीम ले जाती है बाबा हॉस्पिटल। उसको लेकर पहुंचे, यहाँ पर उसका मेडिकल चेकअप हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद तुरंत जो कि ज्यादा दूरी नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता, और 5 मिनट में यहाँ पर टीम पहुंची है कोर्ट के बाहर। कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही टीम अंदर पहुंची है और
यहाँ पर अब पुलिस की तरफ से कोशिश रहेगी कि वो कस्टडी ले सके, जिससे कि जो तमाम इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है उसको लेकर वो आगे इंटेरोगेट कर सके, आगे उसको लेकर सवाल जवाब हो सके। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से बांग्लादेशी वाला कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है उसने सभी को दंग कर दिया और सियासत भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अवैध घुसपैठियों को लेकर इस मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती रही है, अभियान चलाती रही है। और फिर एक और कनेक्शन इस पूरे मामले में, एक बड़ा अभिनेता, एक बड़ा स्टार, सुपरस्टार सैफ अली खान, जिसके घर पर अचानक से हमला हो जाता है और हमला हुआ वो भी इस तरीके से कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद वो ऑटो से जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिलहाल टीम अंदर लेकर गई है और वहां पर जो आगे का प्रोसीजर है वो जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर वापस लेकर टीम आएगी। पहले सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन पुलिस की टीम लेकर पहुंची और पूरा टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ। 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है जहां थाने में गिरफ्तार किया जाता है इस आरोपी को। उसके बाद पुलिस इसको खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती है। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, जहां पर जानकारी डीसीपी की तरफ से दी गई कि क्या कुछ अब तक हो चुका है। अब उसके बाद पुलिस की गाड़ी में पीछे कई गाड़ियां स्कॉट कर रही थी, वहां से रवाना होती है और उसके बाद बाबा हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के बाद यहाँ पर कोर्ट पहुंची है टीम और यहाँ पर अंदर अब आगे का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, जहां पर पुलिस की तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि आगे, क्योंकि देखिए अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। आरोपी कैसे पहुंचा था सैफ अली खान के घर पर, क्या डोर नॉक किया था या फिर बेल रिंग की थी या फिर वो पहले से ही जानता था एंट्रेंस का रास्ता क्या है, एग्जिट कहां से है, उसे कैसे पता था इतनी इजीली, वो कैसे एस्केप कर सकता है, कैसे वो बाहर आ सकता है, कैसे वो इन्वेड कर सकता है, ये वो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हलचल फिलहाल बढ़ी हुई है, टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है और अक्यूज्ड को लेकर अंदर गई है। बड़ा सवाल यही है, ये जो प्राइम अक्यूज्ड है क्या इसका कोई साथी भी था, कोई इसकी मदद कर रहा था, ये इस पूरे ऑपरेशन में अकेला था, पूरे ऑपरेशन को अकेले अंजाम दिया है या कोई इनसाइडर था जो उसकी मदद कर रहा था। ये इंडिया कैसे आया, इतना आसान नहीं था। इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है जो इस बात का सबूत है। ऑल्सो जब डीसीपी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग रखी गई तो डीसीपी ने ये बताया था कि ये बांग्लादेशी है, ओरिजिन इसका वहीं से है और इसको लेकर भी जांच की जा रही है। फिर लगातार ही इज चेंजिंग हिज स्टेटमेंट और उसके अलावा इसकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो तो अलग हो रहे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अंदर देखिए टीम लेकर पहुंची है और हलचल फिलहाल यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और अंदर जो आगे का प्रोसीजर है वो भी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें सबसे पहले टीम जो है खार पुलिस स्टेशन आरोपी को लेकर पहुंची थी, उसके बाद वहां से भाभा हॉस्पिटल और उसके बाद ये जो बांद्रा कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर पुलिस की टीम लेकर पहुंची है। अब इसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और अब जो सवाल जवाब का की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं काफी भीड़ भी यहाँ दिखाई दे रही है, पुलिस के कई वाहन बाहर खड़े हैं। तो अंदर ये वही एंट्रेंस गेट है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहाँ से पुलिस की टीम लेकर गई है आरोपी को, जिसका नाम मोहम्मद आलियान है, जिसने अपना नाम विजय दास बताया था, विजय बताया था, विजय बताया था, कई नाम उसने अपने बदले थे और अपनी पहचान बार बार बदल रहा था। जो लोग जिस लोकेशन पर थाने में जहां गिरफ्तारी हुई है आरोपी की, वहां जब लोगों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि वो बंगाली है, वो यहाँ से नहीं है। और जब सवाल जवाब किए गए तो उसने खुद ही ये बात कबूल की कि उसी ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसी ने अटैक किया था, उसी ने हमला किया था, उसी ने स्टैबिंग की थी। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें अंदर कोर्ट में पेश किया गया है पुलिस की तरफ से। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब कोर्ट की जो टीम है पुलिस की वो कब कोर्ट लेकर आती है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत यहीं से खार पुलिस स्टेशन पुलिस की टीम लेकर पहुंची। Pragati, if you could tell us what are the angles that are being probed by the Mumbai police right now, because there's infiltration, there's also identity forgery as well. Tell us about the various angles that are being probed by the Mumbai police.
बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए कई एंगल यहाँ पर हैं जिन्हें समझना होगा। पहली बात तो ये जो आरोपी है इसका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मामला सामने आया वो ये है कि वो इलीगली इंडिया में घुसता है। वो कैसे आया? वो बांग्लादेशी है तो ऐसे ही क्या उसके कोई और भी साथी हैं? क्या कोई उसको सपोर्ट कर रहा था? इज देयर एनी इनसाइडर हु वाज हेल्पिंग हिम इन दिस ऑपरेशन, और वो अकेले ही इसको अंजाम दे रहा था? इसके अलावा सवाल ये भी है क्या वो पहले से ही सैफ अली खान के घर का रास्ता जानता था? क्या वो पहले ही एज अ स्टाफ मेंबर वहां काम कर चुका था, या वो मेड को जानता था? देखिए शक काफी है, डाउटफुल काफी चीजें हैं, सवाल कई हैं और उन क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं मिल पाए हैं। और इसी वजह से पुलिस चाहती है कि जो कस्टडी है, रिमांड है, पुलिस को मिल जाए, जिसकी वजह से आगे जो सवाल जवाब है पुलिस कैन फर्दर इंटेरोगेट विद द अक्यूज। और इसी वजह से कोशिश यही है पुलिस की तरफ से कि कस्टडी उनकी पुलिस को मिल जाए। ये वही एंट्रेंस गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से पुलिस की टीम लेकर पहुंची है अक्यूज को अंदर, प्राइम अक्यूज, जिसका कोई साथी है कि नहीं अभी तक नहीं पता चल पाया है।